प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। Beloved, greetings in the name of our Lord Jesus Christ. और आज का हमारा विषय है एक शक्तिशाली आक्रामक हथियार। Our today's subject is a powerful offensive weapon. हथियार तो दो किस्म के बाइबल में दिए हैं। There are two kinds of weapons given in the Bible. इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 13 से 18 में लिखा है। In the book of Ephesians chapter 6 verses 13 to 17 it is written कि 5 किस्म के हथियार दिए गए हैं। there are 5 kinds of weapons. और ये 5 किस्म के हथियार जो है ये डिफेंसिव और प्रोटेक्टिव टाइप वेपन्स है। And these 5 kinds of weapons are defensive and also offensive. उसको रक्षात्मक हथियार बोलते हैं। They are called as defensive weapons. इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 18 वचन में In the book of Ephesians chapter 6 verse 18 एक ऑफेंसिव हथियार भी दिया गया है। one offensive weapon is also given. और ऑफेंसिव का मतलब है आक्रामक हथियार भी दिया गया है। Offensive weapon is also listed there. तो आज हम दोनों हथियार के बारे में देखेंगे। Today we will see these two kinds of weapons. पहला जो वेपन जो है उसको बोलते हैं रक्षात्मक हथियार। The first weapon is protective weapon. जैसा पहला हथियार जो दिया है इसको बोलते हैं उद्धार का टोप। The first weapon in it is a helmet of salvation. उद्धार का टोप ये रक्षात्मक या फिर डिफेंसिव ऐसा हथियार है। The helmet of salvation is a defensive weapon. वो हमारे प्राण की रक्षा करता है। God protects our soul. क्योंकि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, As we have received Jesus Christ as our Lord and Savior, तब हमने उद्धार का टोप पहना है। then we are wearing the helmet of salvation. हमारा आत्मा का उद्धार हो गया है Our spirit is saved, और इसलिए हमारे प्राण की रक्षा ये उद्धार के टोप के द्वारा होती है। and our body is saved through this helmet of salvation. ने हमारा आत्मा के रक्षा इस उद्धार के टोप के द्वारा होती है। Sorry, our spirit is protected by this helmet of salvation. दूसरा रक्षात्मक जो हथियार है उसको बोलते हैं धार्मिकता के जिलम। The second defensive weapon is the breastplate of righteousness. शत्रु के जब तीर हमारे तरफ आते हैं, When the enemy throws his arrows towards us, तो फिर ये धार्मिकता की जिलम हमारी रक्षा करती है। then the breastplate of righteousness it protects us. ये हमेशा शत्रु एक कंडेमनेशन के दोष के तीर हमारे तरफ फेंकता है। Always the enemy throws the arrows of condemnation towards us. लेकिन ये धार्मिकता की जिलम हमको उससे रक्षा करती है। But the breastplate of righteousness it protects us against them. बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता है। It is written in the Bible that we are the righteousness of God. और जब हम परमेश्वर की धार्मिकता है तो हम पर अभी कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। As we are the righteousness of God now, there is no judgment over us. जब हम परमेश्वर की धार्मिकता है तो परमेश्वर हमको दोष नहीं लगाता है। As we are the righteousness of God, God does not blame us. और इसलिए ये धार्मिकता की जिलम जब हम पहने हैं, As we are wearing the breastplate of तो righteousness, शत्रु के तीर से भी उसको वो हमारी रक्षा करता है। so it also protects us against the arrows of the enemy. और तीसरा जो रक्षात्मक जो हथियार है उसको बोलते हैं विश्वास की ढाल। The third defensive weapon is the shield of faith. जब हम संसार में चलते हैं, When we walk in our life, कभी कभी हमको निराशा का सामना करना पड़ता है, many times we are faced with hopelessness. लेकिन ये विश्वास की ढाल हमको ये निराशा से हमारी रक्षा करती है। But the shield of faith it protects us against hopelessness. और ये तीसरा रक्षात्मक हथियार है। And this is the third defensive weapon. चौथा रक्षात्मक हथियार है उसको बोलते हैं सत्य का कटिबंध। The fourth protective weapon is the girdle of truth. और कई बार हम जब हमारे जीवन में जब चलते हैं, Many times when we walk in our life, कई बार हम ढीले पड़ जाते हैं, many times we slack. और इसलिए ये कटिबंध हमको मजबूती देता है। And this girdle of truth it provides strength. ये जो कटिबंध जो है परमेश्वर के वादों को दर्शाता है, The girdle of truth is the symbol of the promises of God, जो हमको मजबूती देता है। which provides us strength. अब पांचवा जो हथियार जो है इसको बोलते हैं मेल मिलाप के जूते। The fifth defensive weapon
is the shoes of reconciliation. और ये जो मेल मिलाप के जूते हैं ये सुसमाचार बताने वालों के पैरों की रक्षा करता है। And these shoes of reconciliation, they protect the ministers of the gospel. क्योंकि ऐसा लिखा है कि क्या ही सुहाने उसके पैर है जो सुसमाचार को बताता है। And it is written that his feet are very beautiful, who preaches the gospel of peace. और जब हम सुसमाचार के जूते पहनते हैं, And when we wear the shoes of reconciliation, ये शूज हमारे रक्षा करती है। they protect us. तो प्रिय जो 5 जो मैंने अभी तक हथियार बताए हैं, Beloved, the 5 weapons I have told you, ये रक्षात्मक हथियार हैं। they are defensive weapons. एफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 13वें 17वें इस पे जिक्र किया गया है। They have been mentioned in the book of Ephesians chapter 6 verses 13 to 17. अभी इसी एफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 13 से 18 में और एक हथियार दिया गया है। And in the same book there is also another weapon listed. वहां पर आत्मा की तलवार दी है। There is given the sword of the spirit. ये आत्मा की तलवार ये ऑफेंसिव वेपन है। And the sword of the spirit is an offensive weapon. ये आक्रामक हथियार है। It is an attacking weapon. आक्रामक हथियार भी 5 किस्म के हैं। And the offensive weapon are also 5 in kinds. पहला जो आक्रामक हथियार है ये प्रार्थना। First is prayer. दूसरा जो आक्रामक हथियार है स्तुति करना। Second is praise. तीसरा जो आक्रामक हथियार है आराधना करना। Third is worship. चौथा जो आक्रामक हथियार है धन्यवाद देना या धन्यवाद की भेंट चढ़ाना। Fourth is thanksgiving or thanksgiving offering. और 5वां जो आक्रामक हथियार है घोषणा करना। And the fifth is proclamation. आज का हमारा विषय है एक शक्तिशाली आक्रामक हथियार। Our today's subject is one powerful offensive weapon. और 5 में से हम स्तुति के हथियार के बारे में And देखेंगे। out of these 5 we will look into praise. और आज हम एक उदाहरण लेंगे। And today we will see an example. उत्पत्ति की पुस्तक 29वां अध्याय में ऐसा लिखा है In the book of Genesis chapter 29 it is written कि जो याकूब ने लाबान जो उसका ससुर था उसके यहाँ हो गया that Jacob went to his father-in-law Laban's place. और लाबान को 2 बेटियां थीं And Laban had 2 daughters. और बड़ी का नाम लिया था और छोटी का नाम रेचल था। Elder one's name was Leah and the younger one's name was Rachel. और बड़ी जो थी वो सुंदर नहीं थी And the elder one was ugly. और जो छोटी जो रेचल थी वो सुंदर थी। And the younger one was very beautiful. और याकूब और रेचल के साथ विवाह करना चाह रहा था। And Jacob wanted to marry Rachel. और तब उसने अपने ससुर को कहा कि मैं रेचल के साथ विवाह करना चाहता हूँ। Then he asked his father-in-law that I want to marry Rachel. तब लाबान ने कहा कि तू मेरे यहाँ 7 साल काम कर तो मैं रेचल तुझे दे दूंगा। Then Laban said to him that work 7 years with me for me, then I will give you Rachel. और याकूब ने लाबान के यहाँ 7 साल काम किया। And Jacob worked in Laban's house for 7 years. 7 साल होने के बाद After 7 years, उसने अपने ससुर के कहा कि अभी मुझे रेचल अपनी पत्नी करके दे दो। he asked for Rachel to his father-in-law. लेकिन उसके ससुर ने एक युक्ति की। But his father-in-law again put a condition. ने उसके ससुर ने एक युक्ति की स्ट्रेटेजी की। But his father-in-law set a strategy. और उसने रेचल को याकूब को देने के बजाय उसने लिया को उसको अपने पत्नी करके दी। Instead of giving Rachel to Jacob, he gave Leah. और तब उसने अपने ससुर से शिकायत की। Then he complained to his father-in-law. उसने कहा तक मैंने रेचल के लिए 7 साल कार्य किया है। He said that I have worked for 7 years for Rachel. उसके बदले में तूने अपने बड़ी बेटी को मुझे दिया है। In place of her, you have given your elder daughter to me. तब लाबान ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसी रीति है कि बड़ी का पहले ब्याह करते छोटी का बाद में ब्याह करते हैं। And Laban said that it is a family law that first the elder one is married, then the younger one is married. और इसलिए मैंने तुझे बड़ी बेटी को तुझे दिया है। That's why I have given you my elder daughter. अब तू अगर रेचल के साथ विवाह करना चाहता है तो तुझे 7 साल और कार्य करना पड़ेगा। Now if you want to marry Rachel, you will have to work 7 more years.
और याकूब रेचल से बहुत प्यार रखता था, And Jacob used to love Rachel a lot. और इसलिए उसने माना कि मैं 7 साल और कार्य करूंगा, And he agreed to work 7 more years. और उसने 7 साल और काम किया। And he worked for 7 more years. 7 साल उसने लाबान की भेड़ बकरियों को चराया। He grazed the cattle of Laban for 7 years. वो रेचल से इतना प्रेम रखता था कि उसको 7 साल बहुत कम समय लगा। That he loved Rachel to such an extent that 7 years passed by in a short span of time. और तब उसने रेचल के साथ विवाह किया। And then he married Rachel. याकूब रेचल और लिया में से रेचल को प्यार करता था। Jacob used to love Rachel out of Rachel and Leah both. और लिया से वो नफरत करता था, He hated Leah क्योंकि लिया सुंदर नहीं थी because Leah was not beautiful और रेचल सुंदर थी। and Rachel was beautiful. और लिया का मतलब है जो थका हुआ इंसान है, जो दुखी इंसान है। The meaning Leah means one who is weary and और tired. वो हमेशा चिंता के कारण हमेशा दुखी रहती थी, Because of worrying, Leah used to be very sad. और चिंता के कारण वो हमेशा उसका चेहरा थका हुआ लगता था। Because of worrying, her face was frown. और बाइबल ऐसा कहती है कि ये बोझ से दुबे हुए दुखी लोग मेरे पास आओ तो मैं तुमको विश्राम दूंगा। And the Bible tells us that all that who are heavy laden come to me and I will give you rest. और तब परमेश्वर और लिया का उसने स्मरण किया। And then God remembered Leah. उत्पत्ति की पुस्तक 29वां अध्याय 31 से 35 में लिखा है। In the book of Genesis chapter 29 verses 31 to 35 it is written. लिया के बारे में लिखा है। It is regarding Leah. जब याकूब लिया से प्रेम ने रखता था, When Jacob did not love Leah, परमेश्वर ने अपनी दृष्टि लिया की तरफ की, God set his eyes over Leah. और परमेश्वर ने लिया को पहला बेटा दिया। And God granted Leah her first son. पहले बेटे का नाम रुबेन था। First son's name was Reuben. रुबेन का मतलब है दुख का अंत। And Reuben means the end of sorrow. परमेश्वर ने देखा कि जब मैंने उसको रुबेन दिया है, When God saw that I have given Reuben, तो वो ये खुश रहेगी, that Leah will be happy. और लेकिन उसने अपनी खुशी अपने पत्नी में ढूंढी। But she sought her happiness in her husband. वो अपने पति को अपना सुख का मूल्य जान रही थी। She was knowing her husband as the source of her peace. और पति हमेशा परिस्थिति को दर्शाता है। Husband is a symbol of the circumstances. पति हमारे रिश्तेदारों को भी दर्शाता है। The husband can also depict our relatives. पर ये जो हस्बैंड जो है, पति जो है, हमारे मित्रों को भी दर्शाता है। A husband also symbolizes our friends. और हस्बैंड जो है, पति जो है, हमारे परिवार को भी दर्शाता है। Husband also depicts our family. तो लिया ने अपने पति में अपना सुख ढूंढना शुरू कर दी। Leah began to seek her peace in her husband. अपना सुख उसने अपने पति को अपने सुख का मूल्य जानी। She knew her husband as the source of her happiness. और उसने परमेश्वर को अपने सुख का मूल्य नहीं जानी। And she did not know God as her source of peace. तब बाइबल कहती कि परमेश्वर ने उसको दूसरा बेटा दिया। Then the Bible tells us that God gave her a second son. सिमोन का मतलब है प्रेम, And the second one was Simeon, which means love. और लिया को ऐसा लगा कि मैंने याकूब को 2 बेटे दिए हैं, And Leah thought that I have given 2 sons to Jacob. अभी याकूब मुझसे प्यार करेगा। Now Jacob will love me. और जिस परमेश्वर ने उसको दूसरा बेटा दिया, And the God that gave her 2 second son, उसको उसने अपना सुख का मूल्य नहीं जानी। she did not know God as the source of her satisfaction. लेकिन वो अपना सुख अपने पति में ढूंढने लगी। But she sought her satisfaction in her husband. 2 बेटे होने के बावजूद भी याकूब लिया से प्रेम नहीं रखता था। In spite of having 2 sons from Leah, Jacob did not love Leah. लिया हमेशा दुखी रहती थी। And because of that, Leah was always sorrowful. परमेश्वर हमको कभी भी दुखी नहीं देखना चाहता। God doesn't want us to remain in sadness. परमेश्वर कभी भी हमको निराश नहीं देखना चाहता है। God does not want us to get dismayed. इसलिए परमेश्वर ने लिया को तीसरा बेटा दिया। And that's why God gave a third son to Leah. उसका नाम था लेवी। And his name was Levi. लेवी का मतलब परिपूर्ण था। Levi means completeness. परमेश्वर ने लिया को
ऐसा बेटा दिया कि जिसका नाम था परिपूर्णता। God gave such a son to Leah, whose meaning is completeness. लिया ने परमेश्वर को धन्यवाद देने के बजाय Instead of giving thanksgiving to God, और परमेश्वर की स्तुति करने के बजाय instead of praising God, वो अपने सुख का मूल अपने पति को जानने लगे। Leah began to know her husband as the source of her peace. उसने कहा कि मैंने अपने पति को 3 बेटे दिए हैं। She thought that I have bear 3 sons to my husband. अभी मेरा पति मुझसे जुड़ा रहेगा। Now my husband will be joined to me. और वो मुझसे प्रेम रखेगा, मुझसे प्रीति रखेगा। And he will have love for me. लेकिन ऐसा नहीं हुआ। But it did not happen so. बाइबल कई उदाहरण देती है। Bible gives us many examples. नामान के बारे में उदाहरण देती है। Even about Naaman. नामान एक बहुत अच्छा वॉरियर था। Naaman was a very good warrior. और उसके पास कोई बात की कमी कटी नहीं And थी। he did not lack any good thing. लेकिन वो एक कोढ़ी था। But he was a leper. लेकिन जब उसका कोट चंगा हुआ, But when he got healed, तो तब उसने एलीशा के परमेश्वर की स्तुति की। then he gave praise to the God of Elisha. क्योंकि उसके जीवन में जो अपूर्णता थी, Because the incompleteness in his life, परमेश्वर ने उसको पूरा किया। God had fulfilled it. यहाँ पर लिया के भी जीवन में परमेश्वर ने ऐसा ही किया। Yeah, even in the life of Leah, God did likewise. रेचल को एक भी संतान नहीं थी। Rachel did not have any child. और याकूब हमेशा रेचल से प्रेम रखता था। And Jacob loved Rachel alone. और रेचल बहुत सुंदर थी। And Rachel was beautiful. उसके बावजूद भी उसको संतान नहीं हुई। But she did not have any child. यहाँ पर लिया सुंदर नहीं थी। Yeah, Leah was ugly. लेकिन उसको 3 बेटे हुए। But she bare 3 sons. परमेश्वर ने उसके जीवन में परिपूर्णता को लाया। God brought a completeness in Leah's life. उसके बावजूद भी उसने परमेश्वर की स्तुति नहीं की। Instead of that, she did not praise God. वो हमेशा अपने सुख का मूल अपने पति को जानती थी। She always knew her husband as the source of her happiness. परमेश्वर फिर से लिया को उसने स्मरण किया। Again God remembered Leah. लिया को फिर परमेश्वर ने चौथा बेटा दिया। Then God gave Leah her 4th son. और चौथे बेटे का नाम था यहूदा था। And 4th son's name was Judah. यहूदा का मतलब है स्तुति। Judah means praise. जब लिया ने देखा कि उसको चौथा बेटा हुआ है, When Leah saw that she has bared her 4th son, उसके खुशी का ठिकाना ना रहा। she rejoiced. उसने कहा कि चाहे मेरा पति मुझसे अभी प्रेम रखे या ना रखे, She thought that now may my husband love me or do not love me. चाहे मेरी परिस्थिति अनुकूल रहे या प्रतिकूल रहे, No matter how my circumstances be, आज के बाद मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगी। after today I will praise God. परमेश्वर ने जैसे हन्ना को सैमुएल बेटा दिया, As God gave Hannah Samuel as her son, और जब हन्ना को सैमुएल हुआ, and when Hannah begot Samuel, उसको सिर्फ एक ही बेटा दिया, she had only one son, और वो अपने परमेश्वर की स्तुति करने लगी। and she praised God. उसने अपने प्रतिकूल परिस्थिति की तरफ ध्यान नहीं दिए, She did not look to her circumstances, लेकिन हमेशा उसने परमेश्वर की स्तुति but की। always she praised God. यहाँ पर लिया ने ऐसे ही की। Yeah, Leah did likewise. उसने कहा कि चाहे अभी मेरा पति मुझसे प्रेम रखता है या नहीं रखता हो, She said that may my husband love me or do not love me, लेकिन आज के बाद मैं हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करूंगी। but even in any situation from today onwards I will praise God. और ऐसा ही हुआ। And it happened वो so. हमेशा परमेश्वर की स्तुति करने लगी। She always began to praise God. जब परमेश्वर ने देखा कि लिया हमेशा उसकी स्तुति करती है, When God saw that Leah always praises me, तो परमेश्वर ने उसको संतान देना बंद कर दिया। then God stopped giving her children. बाद में ऐसा लिखा है After that it is written कि जो रेचेल की जो दासी जो थी, that the servant of Rachel, उसका नाम बिला था, her name was Bilhah. और रेचल ने बिला को याकूब को पत्नी करके दिया। Rachel offered her servant Bilhah to Jacob as wife. और बिला के द्वारा याकूब को 2 बेटे हुए। And from Bilhah, Rachel bore 2 sons. उसके बाद जो लिया जो थी, After that Leah, और लिया की भी एक दासी थी, she also had a servant, और उसका नाम जिल्पा था। and her name was Zilpah. और लिया ने जिल्पा को अपने याकूब को अपनी पत्नी करके दिया। And Leah offered Zilpah as wife to Jacob. और जिल्पा को भी 2 बेटे हुए। And Zilpah also
bore 2 sons. इस तरह जिल्पा और बिला को दो दो बेटे बोले 4 बेटे हुए। And from Zilpah and Bilhah, total 4 sons were born. और बाइबल कहती है कि ये 8 साल And the Bible tells us that 8 years उसको कोई संतान नहीं हुई थी। Leah did not have any children. उसके बावजूद भी वो परमेश्वर की स्तुति करती In थी। spite of that, she used to praise God. उसने कही थी चाहे प्रतिकूल परिस्थिति रहे या अनुकूल परिस्थिति रहे, She said, may the circumstances be favorable or मैं unfavorable, परमेश्वर की स्तुति करूंगी। I will praise God. 8 सालों तक उसने परमेश्वर की स्तुति की। 8 years she praised God. यहूदा होने के बाद 8 साल तक उसने परमेश्वर की स्तुति की। After bearing Judah, she praised God for 8 years. तब बाइबल कहती कि परमेश्वर ने लिया को स्मरण किया Then the Bible tells us that God remembered Leah और उसको 5वां बेटा दिया। and gave her 5th son, उसके बेटे का नाम था इस्साकार। and her 5th son name was Issachar. इस्साकार का मतलब है पुरस्कार। Issachar means reward. जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं When we praise God, तो परमेश्वर उसका हमको सिला देता है। then God gives us a reward for it. जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं When we praise God, परमेश्वर हमको उसका पुरस्कार देता God है। gives us a prize for it. पर यह बाइबल में कई उदाहरण दिए In हैं the Bible, there are many examples given. जिन्होंने भी परमेश्वर की स्तुति की Whoever praised God, और परमेश्वर ने उसको उसका पुरस्कार दिया। God gave them a reward for it. दाऊद जो हमेशा परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था, David used to praise God always. हमेशा स्तुति करने के द्वारा वो परमेश्वर को प्रसन्न करता था। By always praising God, he used to please God. बाइबल कहती कि दाऊद का अभिषेक उसके भाइयों के सामने हुआ। The Bible tells us that David was anointed in front of his brothers. उसके भाई लोग कद में ऊंचे और तगड़े थे His brothers were of good stature in height, better than David. और दाऊद वैसा नहीं था, But David was not so. लेकिन दाऊद स्तुति करने वाला था। But David was the one who praised God. और इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को उसको स्तुति का पुरस्कार दिया। And that's why God gave a reward to David for his praise. क्या प्रियो हम थके हुए हैं? Our beloved, we are weary. क्या हम निराश हैं? Beloved, are we dismayed? क्या हम दुखी हैं? Are we of sorrow? क्या हम अपना सुख परिस्थिति में देखते हैं? Are we seeking our happiness in our circumstances? क्या हमने अपने परमेश्वर को सुख का मूल नहीं जाना? Haven't yet we known God as the source of joy? और हमको परमेश्वर को अपना सुख जानने की आवश्यकता है। We should know God to our source of our peace. हमको परमेश्वर की स्तुति करने की आवश्यकता है, We should begin praising God. क्योंकि ये स्तुति एक शक्तिशाली आक्रामक हथियार है। Because praise is a powerful offensive weapon. जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, Whenever we praise God, परमेश्वर हमको उसका पुरस्कार देता ही है। God surely gives a reward to us. जब लिया परमेश्वर की स्तुति करने लगे, When Leah began to praise God, परमेश्वर ने फिर से उसको स्मरण किया, God again remembered her. उसको 6वां बेटा दिया God gave a 6th son to Leah. और 6ठे बेटे का नाम था जुबलून था। And the 6th one's name was Zubulun. जुबलून का मतलब आर्थिक अभिषेक। Zubulun means financial anointing. जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, When we praise God, तो परमेश्वर हमारे ऊपर आर्थिक अभिषेक करता है। then God bestows a financial anointing over us. क्या आप आर्थिक अभिषेक को चाहते हैं? Do you want a financial anointing? तो फिर परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दे। Then begin to praise God today. लिया के जीवन में ऐसा ही हुआ। In the life of Leah, it happened. जब वो लगातार परमेश्वर की स्तुति करने लगे, When she continually praised God, उसने परिस्थिति की तरफ ध्यान नहीं दी। she did not look over her circumstances. परमेश्वर ने उसके ऊपर आर्थिक अभिषेक किया। God gave her financial anointing. परमेश्वर ने सिर्फ लिया कोई आर्थिक अभिषेक नहीं दिया, God not only gave financial anointing to Leah, दाऊद के ऊपर भी आर्थिक अभिषेक था। even to David, God, even upon David there was financial anointing. दाऊद के ऊपर आर्थिक अभिषेक था। Even upon David there was financial anointing. सुलेमान के ऊपर आर्थिक अभिषेक था। Even upon Solomon there was financial anointing. हिजकिय्याह राजा के ऊपर आर्थिक अभिषेक था। Over King Hezekiah there was financial anointing. जिन्होंने भी परमेश्वर की स्तुति की, Whoever praised God, प्रतिकूल परिस्थिति में भी परमेश्वर की स्तुति की, even in unfavorable situations praising God, तो परमेश्वर ने उनके ऊपर आर्थिक अभिषेक किया। then God bestowed a financial anointing over them. परमेश्वर यहीं नहीं रुका, God did not stop here.
परमेश्वर ने फिर से लिया को स्मरण किया, God again remembered Leah उसको 7वीं बेटी दी, and gave her a 7th child, a daughter. और वो उसके बेटी का नाम दिना था। And her daughter's name was Dinah. दिना का मतलब परमेश्वर न्याय करता है। Dinah means that God gives justice. परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। God is not a respecter of any person. याकूब का जब विवाह हुआ, When Jacob got married, और रेचल तकरीबन 20-22 साल की हुई होंगी, Rachel must have been approximately 20 or 22 years of और age. अभी तकरीबन 22 साल और हो गए हैं, And now 22 years passed more, और रेचल को कोई संतान नहीं हुई। and Rachel did not have any child. रेचल का मतलब है सुंदरता, Rachel means beautiful. और रेचल, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, अपने सुंदरता में भरोसा करती थी। And I believe that Rachel used to believe in her beauty. उसको लगा कि मुझ में ऐसी विशेषता है कि मुझे संतान हो सकती है। She thought that I have such characteristic that I can have a child. उसको ऐसा लगा कि मुझ में ऐसी विशेषता है कि मेरा पति हमेशा मुझसे प्रेम रखेगा। She thought that I have such characteristics that my husband will love me no matter what. और मुझे संतान जरूर होगी। And I will also have a child. और 22 साल तक रेचल ने परमेश्वर की स्तुति नहीं की, And for 22 years, Rachel did not praise God. और इसलिए 22 साल में उसको एक भी संतान नहीं हुई। And that's why in 22 years she did not have any child. मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, I believe जब रेचल ने लिया का जीवन देखा, when Rachel saw the life of Leah, कि लिया को 6 बेटे हुए, that Leah had 6 sons, और उसको एक बेटी भी हुई, and she also had a daughter, और उसको तकरीबन 7 संतान हुई। and in total she had 7 children. जब रेचल ने देखा कि मैं तो इतनी सुंदर हूँ, When Rachel saw that I am so beautiful, और उसके बावजूद भी मुझे संतान नहीं हुई, and in spite of that I am not bearing any child, तब उसने परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर then दी। she began to praise God. प्रियो, कभी कभी हम अपने जॉब पर भरोसा करते हैं, Beloved, many times we believe in our job. कभी कभी हम अपने क्षमता पे भरोसा करते हैं, Many times we believe in our own abilities. कभी कभी हम अपने विशेषताओं पे भरोसा करते Many हैं। times we believe in our own talents. हमको ऐसा लगता है कि इसके द्वारा मैं खुश रह सकता हूँ, We think that from this I can be happy. और हम अपने परमेश्वर को अपना सुख का मूल्य नहीं जानते हैं। And we do not know God as our source. और रेचल ने वैसा ही की, And Rachel did likewise. उसने अपने सुंदरता पे भरोसा की, She believed in her own beauty. और उसको लगा कि मुझे कोई भी निराश नहीं कर सकता, And she thought that no one can dismay me क्योंकि मैं सुंदर हूँ, because I am pretty. और मेरा पति भी मुझसे प्रेम रखेगा। And my husband also will love me. लेकिन उसके बावजूद भी उसको एक भी संतान नहीं हुई। And in spite of that, she did not bear any child. उसके बाद ऐसा बाइबल कहती है, After that, it is written in Bible. उत्पत्ति पे उसका 30वां अध्याय में ऐसा लिखा है In the book of Genesis chapter 30, it is written कि परमेश्वर ने रेचल को स्मरण किया। that God remembered Rachel. इसका मतलब रेचल ने परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दी थी, This means that Rachel had begun to praise God. और बाइबल ऐसा कहती कि उसको पहला बेटा हुआ, And the Bible tells us that she begot her first son. और उसका नाम था यूसुफ था। And his name was Joseph. यूसुफ का मतलब परमेश्वर और देगा, Joseph means that God will give more. परमेश्वर और देगा, God will give more. और खुशियां देगा, God will give more happiness. और सुख देगा, God will give more peace. और परमेश्वर और धन देगा, God will give more wealth. और परमेश्वर और उन्नति देगा। God will give more prosperity. वैसा ही तो हुआ। And it happened. और यूसुफ जो था, That Joseph, अपने पूरे परिवार के लिए for his entire family, वो आशीष का कारण बना। he was the reason of blessing. वो सिर्फ अपने एक इजराइल राष्ट्र के लिए आशीष का कारण नहीं बना, Not only he was the blessing for his nation, लेकिन वो मिस्र देश के लिए भी आशीष का कारण बना। but even for the nation of Egypt he was a blessing. यूसुफ क्यों हुआ? Yusuf was begot क्योंकि रेचल ने परमेश्वर की स्तुति की। because Rachel praised God. प्रियो, ये स्तुति करना एक बहुत बड़ा शक्तिशाली आक्रामक ऐसा हथियार है। Beloved,
praising God is a very powerful and offensive weapon. कई बार हमने इसको नजरअंदाज किया है, Many times we have overlooked it. हमको ये नहीं मालूम कि ये हथियार है, We do not know that this is even a weapon. हमको ये नहीं मालूम कि ये आक्रामक हथियार है, We are unaware that it is an offensive weapon. हमको ये नहीं मालूम है कि आक्रामक और शक्तिशाली हथियार है। We are unaware that it is a powerful offensive weapon. कि जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, That whenever we praise God, परमेश्वर हमको उसका पुरस्कार देता है, that God gives a reward to us. परमेश्वर हमको आर्थिक अभिषेक देता है, God gives us a financial ability and anointing. परमेश्वर ने लिया को बेटी दी, God gave Leah a daughter उसका नाम था दिना। and her name was Dinah. दिना का मतलब परमेश्वर न्याय करता है, Dinah means that God gives justice. परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं God करता। is not a respecter of any person. रेचल को अगर 22 साल अगर कोई संतान नहीं हुई, If Rachel did not have any child for 22 years, परमेश्वर यहाँ पर कहता है, God tells us over here मैं नहीं ऐसा परमेश्वर हूँ, that I am a God of judgment. मैं किसी का पक्षपात नहीं करता। I do not take any side. और यहाँ पर रेचल को अगर संतान नहीं हुई, Here Rachel did not have any child कि वो अपने आप पे भरोसा करती थी, because she used to believe in her own self. अपने सुंदरता पे भरोसा She used करती to थी। believe in her own beauty. लेकिन जब उसने परमेश्वर की स्तुति करना शुरू But कर when दी, she began to praise God, तब उसको और एक बेटा हुआ, then she begot another son. उसको बेंजामिन हुआ। She begot Benjamin. बेंजामिन का मतलब ताकत। Benjamin means strength. परमेश्वर ने रेचल को और ताकत दी, God gave more strength to Rachel. और उसके ऊपर जितना भी उसको था उसके ऊपर और उसको दिया। God gave more to Rachel all with what she already had. जिस बात की उसको आवश्यकता थी, Whatever things she needed, परमेश्वर ने उसको सब कुछ दे दिया। God gave her everything. प्रियो, आज हमने स्तुति के बारे में देखा है। Beloved, today we have seen regarding praise. ये स्तुति एक आक्रामक शक्तिशाली हथियार है। Praise is a powerful offensive weapon. वैसे 5 आक्रामक हथियार है। In total, there are 5 offensive weapons. पहला जो है प्रेयर है, First is prayer. दूसरा जो स्तुति है, Second is praise. तीसरा जो आराधना करना है, Third is worship. चौथा है धन्यवाद देना है, Fourth is thanksgiving. और पांचवा है घोषणा करना है। And fifth is declarations. ये पांचों के पांचों जो है शक्तिशाली आक्रामक हथियार है। These 5 are powerful offensive weapons. जब हम उसको अपने जीवन में अपनाते हैं, When we receive this in our life, उसका सिला हमको मिलता है। we also have their reward. जैसे हमने स्तुति के बारे में देखा, As we have seen in regarding praise. क्या प्रियो हम अपने जीवन में ब्रेकथ्रू को चाहते हैं? Beloved, do we want breakthrough in our life? क्या आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं? Beloved, do you want to make progress in your life? क्या आप उन्नति करना चाहते हैं? Do you want to become successful? तो प्रिय, ये 5 आक्रामक हथियार की तरफ हमको ध्यान देने की So, आवश्यकता है। beloved, we should pay heed to these 5 weapons of offensive weapons. और आज हमने स्तुति के बारे में देखा, Today we have looked only about praise. और कई बार हमने रक्षात्मक हथियार के बारे में भी ध्यान दिया है। Many times we have also seen defensive weapons, जैसे उद्धार का टोप, such as the helmet of salvation. हमको उद्धार का टोप के बारे में मालूम है। We know of the helmet of salvation, जैसे धार्मिकता की झिलम, such as the breastplate of righteousness. हमको धार्मिकता की झिलम के बारे में मालूम है। We also know about the breastplate of righteousness, जैसे विश्वास की ढाल, such as the shield of faith. हमको विश्वास के ढाल के बारे में मालूम है। We know of, जैसे कि सत्य का कटिबंध, such as the girdle of truth. इसके बारे में भी हमको मालूम है। About this also we know. और जैसे कि मेल मिलाप की जूते, About the shoes of reconciliation. इसके बारे में भी हमको मालूम है। We know about this. लेकिन ये पांचों के बात वे रक्षात्मक हथियार है, But these are protective weapons. लेकिन हमको आक्रामक हथियार को इस्तेमाल करने की आवश्यकता But है। we should make use of attacking weapons. तो प्रियो, हम आक्रामक हथियार को अपनाना सीखे। So, beloved, we should learn to accept offensive weapons. जैसे हमने लिहा के जीवन में देखा As we have seen in the life of Leah, कि लिहा ने कैसे परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर that दी। how Leah began to praise God. याकूब को 12 बेटे हुए, Jacob had 12 children. 12 सन, उसको याकूब को 12 बेटे थे, Jacob had 12 sons और उसको एक बेटी थी। and he had one daughter. उसको तकरीबन मतलब लिया के द्वारा उसको 7 संतानें हुए। From Leah alone he had 7 children. सबसे ज्यादा संतान लिया के द्वारा हुई, The majority of the children were from Leah, और जिस स्त्री से वो अधिक प्रेम रखता था, and the woman Jacob used to love,
उसको सिर्फ 2 ही बेटे हुए, She begot only 2 sons. उसका सिर्फ एक ही कारण है, It is only because of one reason. लिया ने परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दी। Leah began to praise God. प्रतिकूल परिस्थिति में भी उसने परमेश्वर की स्तुति की, In unfavorable circumstances, she praised God. अनुकूल परिस्थिति में भी उसने परमेश्वर की स्तुति की। In crucial situations, she praised God. हमको प्रतिकूल परिस्थिति में स्तुति करने की आवश्यकता In है, unfavorable situations, we should praise God. और अनुकूल परिस्थिति में भी हमको परमेश्वर की स्तुति करने की In आवश्यकता है, crucial situations, we must praise God. क्योंकि स्तुति करना ये एक शक्तिशाली आक्रामक ऐसा हथियार है। Because praising God is a powerful offensive हाँ, weapon. ये एक शक्तिशाली ऐसा हथियार है। It is a powerful weapon. हाँ, ये शक्तिशाली ऐसा हथियार है, It is a powerful weapon. और वो असर दिखाता ही है। And it works in its time. और एक बार ऐसा हुआ, And once it happened योशिफात जो राजा तो था, that Jehoshaphat the king, और उसको चारों तरफ शत्रु ने घेर के रखा था, he was surrounded by enemies on all sides. और उसका नाश बिल्कुल निश्चय था। And he was certain that he would be जब destroyed. उसने परमेश्वर को खोजना शुरू कर दिया, Then he started seeking God. और जब उसने परमेश्वर को खोजा, And when he sought God, एक जवान ने कहा कि लड़ाई तेरी नहीं लेकिन लड़ाई मेरी है। the young person said to him that it is not your war, it is my war. और परमेश्वर कहता है कि तुझे इन शत्रु से लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं, And God said that you do not need to war against the enemy. और मैं तुम्हारे लड़ाई करूंगा। I will make war in place of you. जो ऐसी भविष्यवाणी ये जवान के द्वारा हुई, When such a prophecy got made through this young person, योशाफात राजा ने अपने पुरनियों की सलाह ली, that Jehoshaphat took advice from his advisors. और योशाफात करने लगा कि अगर परमेश्वर हमारे लिए अगर लड़ता है, Jehoshaphat said that if God is fighting for us, तो हमें अभी क्या करना चाहिए? so what should we do now? तो पुरनिये कहने लगे, So the advisors said, हमारे सिर्फ एक ही काम बचता है, only one thing is remained for us, हम परमेश्वर की स्तुति करें। that we praise God. और इसलिए योशाफात ने वैसा ही किया, And Jehoshaphat did likewise. और अपने सेना के सामने, सबके सामने स्तुति करने वालों को उसने रखा। He sent forth his praise to God in front of his army. और जब लोग परमेश्वर की स्तुति करने लगे, And when the people praised God, परमेश्वर ने शत्रु में गड़बड़ी को डाला, God caused a confusion in the enemy. और शत्रु ने अपने आप को आपस में एक दूसरे को मार डाला, And amongst themselves only the enemy killed each other. और योशाफात को भारी जीत मिली। And Jehoshaphat became victorious. ये कैसे हुआ? It happened क्योंकि उसने परमेश्वर की स्तुति की, because he praised God. और उसने परमेश्वर की स्तुति को अधिक महत्व दिया। And he gave importance to praising God. प्रियो, अगर हमको हमारे जीवन में जीत चाहिए, Beloved, if we want victory in our life, हमको हमारे जीवन में सुख चाहिए, if we want a peace in our life, हमको हमारे जीवन में पुरस्कार चाहिए, if we want a reward in our life, हमको हमारे जीवन में आर्थिक अभिषेक चाहिए, if we want a financial ability in our life, हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी चाहिए, if we want fulfillment of joy, तो ये शक्तिशाली आक्रामक हथियार है। so this is a powerful offensive weapon. स्तुति करना एक शक्तिशाली आक्रामक ऐसा हथियार है, Praising God is a powerful offensive उसको weapon. अपनाएं, Accept it, और हमारे जीवन में हमको ब्रेक थ्रू पे ब्रेक थ्रू मिलेगा। and we will receive breakthrough after breakthrough in our life. बाइबल कहती है कि मैं किसी का पक्षपात, बाइबल कहती है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं The करता। Bible tells us that God is not a respecter of person. जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, Whenever we praise God, परमेश्वर हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पे विराजमान होता है। God is seated in the seat of our praise. जिसने जमीन और आसमान को बनाया, Who has created heaven and the earth. ऐसा परमेश्वर हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पे विराजमान Such होता God है। is seated on a seat of praise. और जब हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पे विराजमान होता And है, when God is seated on a seat of praise, तो हमारे हर एक क्षेत्र में हमको कामयाबी मिलती है। then in every area we become successful. प्रियो, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, Beloved, I believe आज के वचन के द्वारा that by today's message आपको आशीष मिली होंगी। you have been blessed. परमेश्वर इस वचन पे आशीष दे, God bless this message और आपको भी आशीष दे। and bless each and every one of you abundantly. आमीन। Amen.